गाइज वेलकम बैक। तो भैया चलो देखते हैं, राहुल गांधी स्टम्बल्स एंड फंबल्स एज अ स्टूडेंट आस्क्स व्हाट ए इन INDA स्टैंड्स फॉर। तो ये पार्ट तो हमने देखा था एक और वीडियो में, ओहो क्या मजेदार था। मतलब उसकी क्या कहते हैं ना, ऐसा उससे क्वेश्चन पूछा कि वो सच्ची में, और उसका राहुल गांधी का आंसर उसके बाद जो था वो सुन के बैठे हुए लोग भी हंसेंगे, आप भी सुन के हंसोगे कि भैया ये क्या बोला, इट वॉज सो इलॉजिकल। जबकि आपको क्वेश्चन पूछने पर आपका रेड अलर्ट हो जाना चाहिए राहुल गांधी का कि भैया आलू गांधी का कि भाई मैं सोच के बोलूं क्योंकि ए का मतलब क्या है, पर उसने उसके बारे में बिना सोचे बड़ा धड़ल्ले से बोला नहीं INDIA का ए जो है वो ये है। तो उसने कहा भैया ए ये है, तो फिर अलायंस का वो क्या क्या लॉजिक बोला, अलायंस तुमने यहाँ भी बोल दिया, ए इज फॉर अलायंस, उसके बाद तुम अलायंस भी बोल देते हो, तो दैट मेक्स नो सेंस। तो बड़ा मजेदार है। तो चलो देखते हैं और क्या क्या बोला, वो भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, it's not. Alliance? It's not. Because the whole idea, हंस रहे लोग। the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And Sheets on seat sharing policies with your alliance partner, which was Mamata Banerjee's TMC. You also have alliance partners like the Hindutva-based Shiv Sena UBT. My question is, if elected, how will you effectively run a government with such a divided coalition that cannot seem to agree on anything except for the removal of Prime Minister Modi? no, actually we तेरे को ऊपर क्लैपिंग नहीं करे क्वेश्चन पे। we agree that the Constitution of India should be defended. Most of us agree on the idea of the caste census. We agree that two business people, namely Mr. Adani and Mr. Ambani, shouldn't run every single business in India. So for you to say that we don't agree, I think is inaccurate. Second thing is that all coalitions are negotiations, right? So certain amount of to and fro will always take place. That is perfectly natural. There's nothing wrong with it. And we have run governments again and again which have been successful using coalitions. So we're pretty confident that we can do it again. Thank you. And actually, I think if we get it right, If we get it right, you will never get it right. we would. Sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. Because it's not. Because the whole idea of the alliance So it doesn't make sense. was to put across to the people of India He's not that asking India that. is being attacked. With whom, And from whom? it Who's was attacking India? You? And generally the BJP people say India Alliance. That's what but it everyone is. else in India says India Alliance. Nobody it's India says. Alliance. What's the last word stand for? Repeat all. What does the A stand for at Alliance. the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. Because it's not. हमेशा Because बच्चे। the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And इस बार मैं ये देख रही हूँ, राहुल गांधी को लगता है ऐसे मुंह बना लूं और यूं हाथ कर लूं तो बड़ा नॉलेजेबल लगूंगा। पता है नहीं बात का, बस यूं करके और ऐसे दिखाना मैं बड़ा सोच रहा हूँ, बड़ा इतना टाइम लगाता है सोच के, और जब मुंह खोलता है ओ माय गॉड व्हाट ही स्पीक्स, इट इज पैथेटिक। और मैं ये सोच रही हूँ कि इसको ये स्पीच अगर ये बैठा हुआ ऐसे दे रहा था, 9th क्लास के बच्चे जो हैं USA के उनको बिठा दो, 9th क्लास के बच्चे,
और जब ये इंडी अलायंस का बोल रहा है कि INDIA का ए अलायंस है, तो दिस इज वो अलायंस तो लिखा है ए का, ए रिप्रेजेंट्स अलायंस, उसके बाद इंडिया अलायंस है जी इसका नाम। तो अलायंस मतलब इंडी अलायंस, अलायंस अलायंस, दो बारी अलायंस अलायंस आ रहा है। नहीं, तो मतलब बच्चे जो है ना, जो 9th ग्रेड के बच्चे जो बैठे होंगे ना USA वाले, वो उसको सुन के हंसेंगे, क्योंकि ग्रामर, फर्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मुझे खुद याद है कि मैंने ऋषि को बैठा के वो पढ़ाया था, विच वॉज रिडंडेंसी क्या होती है। देखिए इनको बोलना चाहिए, इनको चेंज कर देना चाहिए, बोलना चाहिए इंडी अलायंस स्क्वायर में ये होता है। एक और भैया इंडी इंस्टेड के बोले इंडी अलायंस अलायंस, कि देखिए इंडी अलायंस अलायंस में ये होता है, इंडी अलायंस स्क्वायर में ये हो रहा है। हद ही है यार, क्योंकि बंदा 2 ए तुम्हारे हो चुके हैं। बंदा इतना, और क्वेश्चन में कहां से कहां ये आंसर देते हुए जंप करता है, कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल है, वो पहले दिखाया वो बात कर रहा है, उसके बाद उसने इंडिया अलायंस का शुरू कर दिया, खुद ही इसने बोला, तब उसने पूछा था, इसने बात क्वेश्चन कुछ था, उस क्वेश्चन में एकदम से कुछ बोलते बोलते चेंज करके इंडिया अलायंस बोल दिया। फिर उसने पूछा भैया इंडिया अलायंस में ए क्या है, तो उसने सोचा, बड़ा दिमाग लगाया, इंडिया अलायंस में ए क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि पहले पता नहीं था इन लोगों को मेरे तो कि कांग्रेस बीजेपी जो है क्यों इंडी अलायंस बोलती है। हाँ, इनको मतलब पता नहीं चला हद है। कि बीजेपी इंडी अलायंस इसलिए बोल रही है क्योंकि है इंडी अलायंस। हाँ, पर मुझे तो, मैंने तो कभी रियलाइज नहीं किया लगता कभी। इनका INDIA किसके लिए है? ये एक कोई इनकी वो है क्या, जो मतलब ये दूसरी जो क्या बोलते हैं पार्टियां जो ज्वाइन करके आई हैं, किसी ने परवाह तो नहीं सी तो है ही नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं। भैया ये बताना INDI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनको ये लगा था कि इंडिया बना के हम अब लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, कि हम तो इंडिया नाम रखा हुआ है। उनको ये नहीं पता चला कि बीजेपी ने ऐसा उस पे पोछा मारा कि उन्होंने कहा ये इंडिया नहीं है, हमारा देश नहीं है, ये इंडिया है, और वो ए इज अलायंस। तो ये यहाँ इंडी अलायंस है, उन्होंने उसको ऐसे चेंज करके बोला कि इंडिया नहीं बोलेंगे, हम इंडी अलायंस बोलेंगे। और ये मैंने सबसे पहले बोला था कि इंडिया कभी मत बोलो, इंडी अलायंस बोलो, और उसके बाद वो कैचअप होके सबने किया। और अब ये इनको तकलीफ हुई, तो इन्होंने कहा कि भैया बीजेपी बोलती है, हम तो इंडिया ही बोलते हैं, पर ये इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस नहीं है बेटा जी, तुम्हारा इंडी अलायंस ही है, बिकॉज दैट ए स्टैंड्स फॉर अलायंस। ये अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लो। बट दिस वाज फैंटास्टिक, ऐसे बैठ के ओहो क्या जो तालियां बजे थी वो क्वेश्चन के लिए हाँ, और जो हंसे थे, जो बैठे हुए थे, वो इसकी इंडी अलायंस का आंसर सुन के उसलिए हंसे थे कि भाई ये बोला क्या। क्योंकि जो यहाँ के बच्चे होंगे उनको पता है, क्योंकि ये फर्स्ट रूल ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर में इंग्लिश में क्या लिखना है नहीं लिखना राइटिंग के लिए, ये सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है। पर कमाल है, जॉर्ज टाउन वाले बोल रहे होंगे, जॉर्ज टाउन कॉलेज था शायद, वो सोच रहे होंगे किस बंदे को बुला लिया यार, ये तो अपनी बेइज्जती हो गई, कहीं हमारी रैंकिंग कम ना हो जाए अगली बारी जब कॉलेज की रैंकिंग्स आती है कि हम किस टाइप के लोगों को बुलाते हैं। सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ये देखकर कोई पेरेंट बोलेगा भैया ऐसे कॉलेज में नहीं भेजना जहाँ पे ऐसे स्पीकर्स को बुलाते हैं, जिनको यही नहीं पता, कि रूल्स ऑफ ग्रामर ही नहीं पता, बड़ी कॉन्फिडेंटली आके गलत बता रहे हैं, वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।